Hello students, in our first unit there is a question. What are the various ways of word formation? कितनी तरह से हम नए words बना सकते हैं इंग्लिश में? So according to the Cambridge Dictionary, there are four main kinds of word formation. Number one, prefixes. Number two, suffixes. Number three, conversion. And number four, compounds. So prefix क्या होते हैं? We add prefixes before the base or stem of a word. For example, usual में un लगा दिया तो वो unusual बन गया और उसका meaning change हो गया. Okay? For example, multi किसी word के पहले लगा दिया, जैसे multi-purpose, हम लोग बोलते हैं ना multi-purpose hall. So multi means many. So multi-purpose, multi is prefix. So now let's talk about suffix. We add suffixes before the base or stem of a word, and the main purpose of a suffix is to show what class of word it is, if it is noun or adjective. Okay, like terror. टेरर में अगर इज़म लगा दिया तो टेररिज्म बन गया, वो पहले से ही नाउन था और फिर से नाउन बन गया. ठीक है, टेररिज्म. एक्ट वर्ब है, इसमें ओ आर लगा दिया सो इट बिकेम अ नाउन. एक्ट से एक्टर बन गया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Conversion involves the change of a word from one word class to another. For example, change from proper noun to common noun. इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं समझने के लिए. मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हैज़ एनीवन सीन माई भगत? अब भगत, आई एम रेफरिंग टू चेतन भगत. इसका मतलब अ कॉपी ऑफ बुक रिटन बाय चेतन भगत. तो यहाँ पर भगत इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन जब मैंने कहा हैज़ एनीवन सीन माई भगत, सो हियर आई एम रेफरिंग टू कॉमन नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, कैन यू टेक्स्ट मी? अब टेक्स्ट जो है वो नाउन है, बट हियर इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज टेक्स्ट एज अ वर्ब. Okay, so what we are doing, we are converting one word class to another. So compounding means milana. So when we link together two or more bases to create a new word, it is called compounding. Okay, so for example, backache. So two bases, back and ache, can combine to form the compound noun backache. Okay, तो इससे हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, वर्ब्स भी बना सकते हैं, और नाउन तो बना ही सकते हैं. मैंने अभी आपको नाउन का एक एग्जांपल दिया. और नाउन के एग्जांपल हो सकते हैं कार पार्क, रॉक बैंड. एडजेक्टिव इसका हो सकता है शुगर फ्री. वर्ब इसका हो सकता है बेबी सिट और चेन स्मोक. सो ये सेकेंड तरीका जो है, जो दूसरा तरीका है वर्ब को वर्ड को बनाने का, दैट इज कंपाउंडिंग. There is one more way to form a new word, and that is called loan words. यानी हम किसी भी लैंग्वेज से कोई वर्ड बोरो करते हैं और उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं. ओके, सो लोन वर्ड्स आर बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंड दे आर नॉट चेंज्ड. जब वो दूसरी लैंग्वेज में भी यूज़ होते हैं तो वैसे ही यूज़ होते हैं. जैसे कॉफ़ी से कैफ़े बन गया. ओके, पिज़्ज़ा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. Beside these four types, we have a few more types of forming new words. So if you want, you can include them as well in your answer. The first one is abbreviation, or you can say the fifth one is abbreviation. Okay, so abbreviation, we all know that it is all about shortening a word. It involves shortening a word, and this has three subparts. The first one is clipping, the second one is acronym, and the third one is blends. So clipping also means shorten one or more syllable from a word. सिलेबल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. सिलेबल साउंड की सबसे छोटी यूनिट है. ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. सो क्लिपिंग का एग्जाम्पल हो सकता है एड. जैसे एडवर्टिजमेंट में हमने ए डी निकाल दिया और दिस बिकम्स अ न्यू वर्ड एड. तो हम हमेशा एडवर्टीजमेंट नहीं बोलते, वी से एड. ओके, इन द सेम वे लेबोरेटरी, हम कभी भी लेबोरेटरी पूरा नहीं बोलते, हमने उसका एल ए बी एक सिलेबल निकाला, एल ए बी, और वो
एक नया वर्ड बन गया. सो आई होप क्लिपिंग इज क्लियर टू यू. नाउ कम्स द सेकेंड वन, दैट इज एक्रोनिम. Like abbreviation, initial letters of two or more words are combined. For example, WHO, World Health Organization, CD, like RAM. Okay, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्रोनिम्स हैं, शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स. The third subpart of abbreviation is blends. So blends, as the name suggests, it is all about combining two separate words. अब हमने सुबह का ब्रेकफास्ट लिया और दोपहर का लंच लिया, ठीक है. अब सुबह और दोपहर के इन मील्स के बीच में जब हम खाते हैं तो हमने ब्रेकफास्ट का ब्र और लंच का अंच से निकाला और हमने एक नया वर्ड बनाया ब्रंच, जो कि हम अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भी कुछ खाते हैं दैट मील इज़ कॉल्ड ब्रंच. वैसे ही एल्कोहलिक और वर्क दोनों को हमने मिला दिया तो वर्कोहलिक बन गया. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लेंड्स.